শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, ভোর রাতে ভারতের বিরাট প্রত্যাঘাত পাকিস্তানে তিনটি বায়ুসেনা ঘাঁটি একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফ থেকে। রাওয়ালপিন্ডি, শোরকোট সহ একাধিক জায়গায় হানা। রাওয়ালপিন্ডি নূর খান এয়ার বেস গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। নূর খান, মুরিদ এবং রফিকুই পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি সহ 4টি বায়ুসেনা ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार साइट और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहनियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। कर्नल सोफिया कुरैशी তিনি আরো জানিয়েছেন, পাকিস্তানের রফিকি, মুরিদ, চাকলালা এবং রহিম ইয়ার খানে পাক সেনা যে এয়ারবেস, সেই এয়ারবেসে আকাশপথে ভারত হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও সুক্কুর এবং চুনিয়ার পাক সেনা ঘাঁটি, পসরুর এবং শিয়ালকোটের বিমান ঘাঁটিতেও হামলা চালানো হয়েছে। वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। কেন ভারতের বিরাট প্রত্যাঘাত? গতকাল রাতে ভারতের 26টি শহরকে টার্গেট করা হয়। অমৃতসর, পাঠানকোটেও পাক মিসাইল হানা। পাকিস্তানের ফতেহ মিসাইল হানার চেষ্টা করা হয় সক্রিয় ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। অমৃতসর এবং পাঠানকোটে পাকিস্তানের ড্রোন এবং মিসাইল মাঝ আকাশে ধ্বংস করা হয়েছে। আর এরপরই পাকিস্তান কমপক্ষে 4টি শহরে বিরাট প্রত্যাঘাত করা হয়। পাকিস্তানের 4 বায়ু সেনা ঘাঁটি ভারতের তরফ থেকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. Deplorable, cowardly act targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. সেখানে পাক ড্রোন হামলা টার্গেটে পৌঁছানোর আগে তা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। आपको बता दें कि रात को यहां पर ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट एक आसमान में हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइस जो पाकिस्तान द्वारा भेजा गया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इंडिया की ओर से। आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लोसिव डिवाइस जो था, ड्रोन था, जिसको इंडिया की ओर से, इंडिया के डिफेंस सिस्टम की ओर से इस ड्रोन को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बिग ब्लास्ट कह सकते हैं। काफी रोशनी भी हुई, हमने सुना कि काफी लाइट, हाँ, रेड कलर दी लाइट जिदा ते पब्लिक लेट गई जमीन दे ऊपर रात ही 1:30 बजे की बात। हाँ जी, 1:30 के करीब 1:40 बता रहे। जल्लूपुर खेड़ा गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ड्रोन के टुकड़े जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अमृतसर में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर ड्रोन के टुकड़े जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ परमवीर सिंह औलख, जी मीडिया, अमृतसर। ভারতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পাকিস্তানের সমস্ত দাবি ভুয়ো। শীর্ষে আদমপুর এবং সুরাতগড় এয়ারবেসে কোনো ক্ষতি হয়নি। S-400 এয়ার ডিফেন্সের ধ্বংসর দাবিও একেবারে ভুয়ো। আফগানিস্তানে ভারতের মিসাইল হানার প্রচার একেবারে হাস্যকর। ভারতকে সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করার চেষ্টা বিফল। অমৃতসরে মিসাইল ভারত নিজেই মারবে, এটা হাস্যকর। ইসলামাবাদকে সাফ বার্তা নয়াদিল্লির।
The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. অন্যদিকে ব্যাপক উত্তপ্ত জম্মু, 24 ঘন্টা নন স্টপ সেখানে সকাল পর্যন্ত বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। বেজেই চলেছে এয়ার সাইরেন, পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। 4টের পর থেকে পাকিস্তানের দিক থেকে গোলা ছোড়া হয়েছে এবং সেই গোলা একেবারে আর্টিলারির কারণে বহু মানুষ জখম হয়েছেন, সাধারণ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে, এমনই ইট ভাটায় একটি গোলা পড়েছে এবং তাতে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। सुबह जैसे बातें जितने हो रही थे सीधा गोला आके ना सीधा भट्टे के ऊपर गिरा। यहाँ पर आपका पैर में ये लगा है, वो उसी आर्टिलरी का पार्ट? आर्टिलरी का नहीं, वो बम पड़ा ना तो ईट उठ के इसके। আচ্ছা, मतलब उसी का कारण ये हुआ है যে সীমান্তে তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে, হামলা চালানো হচ্ছে, অনেকেই জখম হয়েছেন। একজন সিরিয়াস জখম, তাকে জম্মু হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাকিরা ফিরে যাচ্ছেন এই ট্রাক্টরে চড়ে এবং তাদের ইট ভাটার কাজ ছেড়ে। এটাই এখন সীমান্ত এলাকার ছবি, যেখানে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন পাক সেনার দ্বারা এবং পাক সেনা নির্লজ্জভাবে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে। নওশেরা থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট শুভাশিস দাসের সঙ্গে রাজীব চক্রবর্তী, জি24 ঘন্টা। পুঞ্চ, রাজৌরি সহ জম্মুর বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছে পাকিস্তানের তরফ থেকে। इस वक्त मैं जम्मू के रेहाड़ी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक अटैक जो है वो यहां पर किया गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि आप साफ तौर से यहां पर देख सकते हैं कि जो एक गोला है वो एक घर के जो ऊपर का फ्लोर है वहां पर आकर जो है वो गिरा है। साफ तौर से आप तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं कि उसके बाद यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है और ये नुकसान आप यहां पर देख सकते हैं कि कई गाड़ियां जो हैं उन्हें यहां पर नुकसान जो है वो यहां पर पहुंचा। और घर का बिल्कुल आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरह का नुकसान जो है वो यहां पर हुआ है। कई वाहन जो हैं वो यहां पर जो है वो क्षतिग्रस्त जो है वो यहाँ पर हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर सिविल डिफेंस जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं इस वक्त की जो यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर कितना हुआ है। और आसपास के लोग जो हैं वो उस वक्त दहशत में आ गए जब ये नुकसान यहाँ पर हुआ, क्योंकि एक के बाद एक कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि घर जो है उसे नुकसान पहुँचा है। जम्मू से जी मीडिया के लिए रवि शर्मा। জম্মু কাশ্মীরে লাগাতার চলছে গোলাবর্ষণ। পাকিস্তানের হামলায় রাজৌরিতে এক সরকারি আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে। রাজৌরি এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার রাজকুমার থাপার বাড়িতে শুক্রবার রাতে পাকিস্তানের ছোড়া একটি গোলা গিয়ে পড়ে। हमारी मौजूदगी राजौरी में है, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश की गई और हैवी शेलिंग की गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो हैं वो यहां पर उनको भारी नुकसान हुआ, उनके घरों को भारी नुकसान हुआ। और हम इस समय एक पूर्व सैनिक सुभाष जी के घर पर मौजूद हैं, जहां पर ये शेल जो है वो आकर गिरा। ये आर्टिलरी फायर जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पाकिस्तान के कायराना हरकत के वो सबूत हैं जिसकी वजह से साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कितना बड़ा अटैक ये था और कितना भारी, इतना से टुकड़े का इतना भारी वजन है तो कितना बड़ा गोला जो है वो यहाँ पर आकर पड़ा है और कितना नुकसान उससे हुआ। कई सारा सामान जो है वो इसमें पड़ा हुआ था, खाने पीने का, इसके अलावा सिलेंडर्स जो हैं वो पड़े हुए थे और काफ़ी सामान जो यहाँ पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से अब यहाँ बिखरा हुआ है, तहस नहस हो चुके हैं। ये पूरा अगर कमरे की बात करें तो पूरी तरह से ये ज़मींदोज हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो आसपास जितना भी पूरा एरिया था उसको भारी नुकसान जो है वो हुआ है। জম্মু সেক্টরের পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নিচ্ছে। জম্মুতে পরপর ধর্মীয় স্থানে পাক হামলা, জনবসতি, মন্দির লক্ষ্য করে পাক গোলাগুলি বর্ষণ চলছে। গুরুদ্বারা এবং গির্জাতেও পাক হামলা। পাক হামলার যোগ্য জবাব ভারতীয় সেনার তরফ থেকে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর বিবৃতি ভারতীয় সেনার।
इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आज सुबह 5:45 बजे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिरा है जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया था। और यहां पर उस वक्त जो है घना धुआं, जहां पर आपको पुलिस की जीप दिखती है वहां के आसपास ही एक जगह पर घना धुआं देखने को मिला और जोरदार धमाके की आवाज़ हुई। आपने धमाका सुना? धमाका सुना। कितना जोर से हुआ धमाका? बहुत खतरनाक धमाका। तो घबरा गए उस वक्त? और क्या, हाँ घबरा गए बहुत। सुबह करीबन 4:30 से जो एयर एंगेजमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो देखने को मिल रही है। जो है काफ़ी ड्रोन्स यहाँ इस इलाके में खासकर श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास जो देखने को मिले, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने उसको जो है डिटेक्ट किया और उन सारे ड्रोन्स को ग्राउंड कर दिया गया है। গতকাল রাতে রাজস্থানে ভারত পাক সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় মিসাইল ড্রোন হামলার চেষ্টা করা হয় পাকিস্তানের তরফ থেকে। নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। तकरीबन 4 बजे के आसपास ये धमाका हुआ है और ये धमाका हुआ है जिसमें जिले के जो सदर थाना क्षेत्र का एक बड़ा गांव है उसके पास मंगलियों की ढाणी है, वहां पर ये तेज धमाका हुआ है। पहले एक खेत में एक धमाका हुआ, उसके बाद आग की लपटें उठी और उसके बाद कुछ हिस्सों में ये टुकड़ों में तब्दील होता हुआ धीरे धीरे जो आसपास के खेत व जो घर है रहवासी उसमें जाके गिरे। उस समय घर में सब लोग सो रहे थे, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। 4:30 बजे के बाद ये ब्लास्ट हुआ और चिंगारियां उड़ने लगी और धुआं हो गया। इसमें कुछ नहीं होना है, ये खिलौने हमारे, इस तो हमें खेलते हैं, हमें इसमें ये कोई नहीं है ऐसा डराने के लिए। हम डरने वाले नहीं हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर कहीं जरूरत आएगी तो आप तैयार है सेना? बिल्कुल सेना के लिए तैयार है 100%। देखिए ये वो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के सीमावर्ती जिले के युवा हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये हरकत हो रही है अगर इससे बाज नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं मुंह तोड़ इन्हें बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। একের পর এক ফ্রন্ট খোলার চেষ্টা পাকিস্তানের গুজরাটের কচ্ছে। পাকিস্তানের তরফ থেকে হামলা, পরপর মিসাইল হামলার চেষ্টা পাকিস্তানের মাঝ আকাশে মিসাইল ধ্বংস করল ভারত। आज सुबह कच्छ के जो आदिपुर शहर है, आदिपुर शहर की SRC जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी ऑफिस है, उसमें ड्रोन गिरा है। पाकिस्तान से ड्रोन आया हुआ है कि मान्यता है। अभी SP साहब सहित के साथ जो पुलिस काफिला है वो यहाँ पहुँचा था और सबने यहाँ मुआवजा लिया है। SP साहब यहाँ से निकल गए हैं, शायद जो गृह मंत्री है उसके साथ रिपोर्टिंग करने वाले, उसके बाद प्रेस को ब्रीफ करेंगे। अभी जो पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है वो तो वही है कि ये पाकिस्तान का ड्रोन है और पाकिस्तान से यहाँ गिरा है, मगर जो ये पुरानी बिल्डिंग है इसलिए उसमें कुछ हताहत नहीं हुई है, बल्कि जो गिरा हुआ है ड्रोन उसकी जानकारी ले जा रही है और उसके बाद ही सब पता चलेगा। विजरेश रावल, जी मीडिया, गांधीधाम। পাকিস্তানের শিয়ালকোটে প্রত্যাঘাত, ভারতের জঙ্গিদের লঞ্চ প্যাড ধ্বংস করা হয়েছে BSF এর তরফ থেকে। ভারতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পাকিস্তানের সব দাবি ভুয়ো। শীর্ষ আদমপুর এবং সুরতগড় এয়ারবেসে ক্ষতি হয়নি। S-400 এয়ারবেসে যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে সেটাও ধ্বংস করার যে দাবি করা হয়েছিল সেটাও ভুয়ো। আফগানিস্তানে ভারতের মিসাইল হানার প্রচার হাস্যকর। ভারতকে সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করার যে চেষ্টা তা বিফলে যাচ্ছে। অমৃতসরে মিসাইল ভারত নিজেই মারবে এটা হাস্যকর, এই বক্তব্য নয়াদিল্লির তরফ থেকে।
The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false, once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।